Assalamu alaikum, 6th class. How are you? I hope you will be fine. Today, July 7th, day is Tuesday. As you know, you are class 6, your subject English. This is your lecture number 13. Okay, listen to me, 6th class. In previous lecture, we have done reading of unit number 2. In this lecture, we will solve exercise today. We will start from page number 19. You people open your book, page number 19. Look here, this page, 6th class. These are some activities. These are not important because you people done yourself. ये जो activities दोनों आप देख रहे हैं, ये आपकी रीडिंग में से हैं. रीडिंग आपने सुनी है, ठीक है, स्टेटमेंट दी हुई हैं और उन स्टेटमेंट के साथ वजूहात क्या हैं फर्स्ट कॉलम में, और दूसरे में है कि आपने कॉज द फॉलोइंग मूवमेंट, उन मूवमेंट की वजूहात बतानी है, कॉजेज बतानी है. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम योर रीडिंग. नाउ यू विल move your page number 20. This page is also not important. And now next your page number 21. Look at here, 6th class. Here is a box and also in under a map of the country. यहाँ पर अफगानिस्तान के बारे में पूछा गया है और वो आप लोग इस टेबल को, इस पोर्शन को आप कंप्लीट करेंगे. लुक एट हियर, मैंने राइट किया है, नेम पहले से मेंशन है, एंड रिलीजन इस्लाम, सी capital Kabul, its important cities Kabul, Jalalabad, neighboring country Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, and rivers, important rivers जो हैं इसके हरीफ, मुर्गाब, और इसके माउंटेन्स हैं नशाक, पामेर, हिंदू कुश, और इसकी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स कौन सी हैं, वीट, राइस एंड करेंसी अफगानी रूपी. फेमस फॉर, ये कंट्री क्यों मशहूर है, माउंटेन्स की वजह से, फ्रूट्स की वजह से, वुड, जंगलात, कॉटन एंड कारपेट. के लैंग्वेज इसकी क्या है, पर्शियन एंड पश्तो. ड्रेस, men शलवार कमीज, ड्रेस फॉर वीमेन शलवार कमीज एंड दुपट्टा, एंड ऑल्सो अबाया या गाउन. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22. Look at here, 6th class. Here is the word study. ये एक गेम की तरह से है, आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से डिफिकल्ट वर्ड के स्पेल भी लर्न कर सकते हैं. लाइक सेव, फर्स्ट वर्ड, एंड हियर इज सम ऑल्सो वर्ड, आई एम सर्कल. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बना के दिखा दी हैं आपको, लाइक दिस. ये स्पेल जो हैं डीजी के, ओके.
and next is throb, and this side is debris. Your next part is part B. The following words are found in the text but they are scrambled up. इनको scramble किया हुआ है और हमने इन्हें unscramble them to find out that they are. हम इन्हें correct करके लिखेंगे, इनके spell unscramble करेंगे. Like first example book पर ही दी हुई है, flatten. Next word is terrified. And next word is number 4, rescue. And here is number 2, sphere. Number 5, cough. Number 6, crumble. Our next activity is C part. Fill in the blanks with suitable words. A big university for women is going to be constructed at the outskirts. Outskirts means शहर से बाहर, of the city, शहर से. Some structures will have been in first blank you write demolished. गिराना, तोड़ फोड़ करना, तबाह करना. The ground will have to be flattened. उसको मैदान बना दिया बिल्कुल. Soon the cranes and bulldozers will be swinging. चलाए जा रहे हैं वहां पर, जल्द ही बुलडोजर वहां पर चलाए जाएंगे. And the contractor will have to remove the debris. Here is this option. I'm not right here. Debris means malba. You write this option. Now you look second box of this activity. Here you see first sentence, Mohsin's heart throbbed. The sight of the man who sat next to him in the bus. In second statement, he resembled. The picture or the poster of the man wanted by the police. He felt dizzy and wanted to call out to the driver to stop the bus, but his mouth, here is the word in blank, Q word. What is Q word? In fear, kampna. He tried to dash out of the bus, but the man's big legs hampered. In this blank word is hamper. What is this word? Hamper. His way. Now we will solve our page number 24. Look at here G part. Write specific nouns to make their point clear. For example, knife, fork are the specific nouns grouped under the general nouns, like a strawberry. Underline the general nouns in each column. आप लोगों ने क्या करना है, मैंने ये पहले से भी अंडरलाइन कर दिया है. अंडरस्टैंड इसको करेंगे कि आपने जनरल जो आम चीज़ों के नेम यूज होते हैं वो आपने अंडरलाइन करने हैं. आई एम ऑल्सो ऑलरेडी अंडरलाइन द एग्जाम्पल. लाइक हियर इन दिस लिस्ट यू फाइंड नीम, पाइन. ये स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नेम है ट्रीज के, बट वी ओनली अंडरलाइन जनरल नाउन. लाइक हियर इज द वर्ड ट्रीज. ट्रीज तो कोई भी हो सकते हैं, ये तो एक जनरल नाउन है. ठीक है. हेज, विला, कॉटेज, दीज आर प्रॉपर नाउन. नेम है ये बकायदा. बैंगलो, पैलेस, फ्लैट,
here is the general noun dwelling. Dwelling means घर. And also here is the list tools. Tools की आलात की लिस्ट है. Tools हम generally कहते हैं किसी भी tool को. Here is a dress के लिए लिस्ट है. Apparel common है. And next list you look here is a crockery. बर्तनों के बारे में ये लिस्ट है. प्रॉपर नेम्स हैं उसका, कप, प्लेट वगैरह. लेकिन हम जब उसके लिए क्रॉकरी का वर्ड यूज करते हैं तो उसमें सारे ही बर्तन आ जाते हैं. ओके, लुक एट योर एक्टिविटी नंबर सेकेंड, 8 पार्ट. राइट 3 स्पेसिफिक नाउन्स फॉर ईच जनरल नाउन. लुक हियर 6th क्लास. फर्स्ट जनरल नाउन जो है वो बर्ड है और मैंने उसके स्पेसिफिक नाउन्स में नेम मेंशन किया है. लाइक क्रो एक स्पेसिफिक है, प्रॉपर नेम है उसका. ईगल एंड ऑल्सो पैरट. कलर्स हैं तो आप कलर कोई भी हो सकता है. हम ये जनरल नाउन है. अगर हम कहें ब्लू है, रेड है, ब्लैक है तो ये स्पेसिफिक नाउन्स हो गए कलर्स के. उसके बाद फर्नीचर है. फर्नीचर हम जनरली कहते हैं, जनरल नाउन है. उसमें बेड हो सकता है, चेयर है, टेबल है. देन बुक. बुक कोई भी हो सकती है. जब हम किसी का नेम लेंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा. इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू. व्हीकल, व्हीकल्स में गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट. ठीक है, उसमें बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, कार हो सकती है, वो स्पेसिफिक हैं. व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट का जरिया कोई भी हो सकता है. देन स्पोर्ट, खेलें. स्पोर्ट्स तो कोई भी हो सकती हैं, वो जनरल नाउन है. उनमें जब हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आ जाते हैं तो वो स्पेसिफिक नेम है उनके. स्टेशनरी, स्टेशनरी की चीज़ें बहुत सारी होती हैं, ये जनरल नाउन है. इसमें जब हम यूज़ करते हैं पेन, पॉइंटर एंड ऑल्सो रेजर, दीज आर स्पेसिफिक नाउन्स. ओके, नाउ we will move our next activity. You look here. Here is number 2. Write 3 synonyms of the following words in the table. ये वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इनके synonyms राइट करने हैं. माइंडेड 6th क्लास. फर्स्ट वर्ड एग्जाम्पल के तौर पर बुक में पहले ही दिया हुआ है. सूदिंग, कंफर्टिंग, सेटिस्फाइंग, रिलैक्सिंग. नाउ सेकेंड वर्ड इज अबेटेड. आप लोगों की बुक पर पहले इसके जो हैं वो रिमूव हुए होंगे, ठीक कर लें. रीडिंग में से ही है ये वर्ड. अबेटेड मीन्स रिड्यूस, डिक्रीज एंड थर्ड वन इज लेस. एमानेटेड मीन्स एंटर, अपीयर, बिकम. एंड योर फोर्थ वर्ड इज रिसाइट. Read and speak. Here we read speak and then next word is narrate. Look at here 6th class. Here is our word restored. ये स्पेल ठीक नहीं है, आप लोग ठीक कर लेंगे. नंबर 5 पे restored है reinstate, to bring back, return. Now we will solve our page number 20. In this page you look, here is a column. Write the past tense of the following verbs. आपने प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, इसके पास्ट टेंस जो हैं वो राइट करने हैं. मैंने आपको टेबल कंप्लीट करके इसका दे दिया है. ठीक है, आप लोग इन फॉर्म ऑफ वर्ब्स को लर्न भी करेंगे. फर्स्ट वर्ड है अबेट, अबेटेड, बरी, बरीड, कैन, कुड, कोलैप्स, कोलैप्स, कॉप, कॉप, क्रम्बल, क्रम्बल्ड, क्राई, क्राइड, डैश, डैश, डाउन, displaced, emanated, and next word is number 12, emptied,
fell, failed, flattened, flooded, hampered, heard, hesitated, hide. My dear class, hampered, I miss here some word. Number 19, heard. इसके साथ ईडी आपने नहीं राइट करना। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं और इसको हेयर्ड पढ़ते हैं, हेयर्ड नहीं है, heard. दिस वर्ड इज heard और इसके साथ ओनली डी आपके पास फॉर्म में यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड इज hesitate, hesitated, hide, horrified. And next column, you look at here, plan, renewed, restored, ruined, shocked, soothed, stand, stood, swing, swung, 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 terrified, think, thought, throbbed. Now we will move to our next page. Look at here, 6th class. You people can solve this activity drawing the related sentences to make coherent paragraph. एक मुकम्मल पैराग्राफ बनाना है रस के साथ। यूज द कंजंक्शन गिवन इन द बॉक्स। कंजंक्शन दी गई है बॉक्स के अंदर और हम इन्हें यूज करके एक कंप्लीट पैसेज बनाएंगे, क्योंकि पहले ये पैराग्राफ सेंटेंसेस की फॉर्म में दिया गया है। पेंगुइन्स आर बर्ड्स। दे आर को और फुल स्टॉप को कट करके आप यूज करेंगे दैट फाउंड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। हियर इज द फुल स्टॉप। दे आर कवर्ड विथ फीदर्स। दे आर कवर्ड को कट कर देंगे एंड विथ अ वाटरप्रूफ कोट। हियर इज द फुल स्टॉप। ओके, लिसन टू मी 6th क्लास। अब ये सेंटेंस की कुछ तरतीब चेंज करनी है आपने। दे स्टैंड अपराइट, ये बाद में आएगा, मैंने ऑलरेडी इस पर नंबर 2 लिख दिया। और दे रिजेंबल डक, ये पहले आएगा। आप लिखेंगे दे रिजेंबल डक बिकॉज दे स्टैंड अपराइट। और हमने कंजंक्शन क्या यूज करना है इनके दरमियान में? बिकॉज। दे रिजेंबल डक, they because they stand upright. Next, they are about 1 to 4 feet in height. फिर फुल स्टॉप को भी कट कर देंगे, they have, they को कट कर देंगे। height and have webbed feet, then full stop. They are expert swimmers, they को और फुल स्टॉप को कट करेंगे। and like to eat fish, squid and shellfish, then full stop और they को कट करेंगे and lay eggs. In this page, this is your activity you have done on your books. Now we will move to our next page. Look here, 6th class. In this page, you people find here is the part I underline adverbs and phrases in the following sentences which can another beginning of the sentences, beginning of the sentence, rewrite the sentence with beginning. कुछ phrases हैं, कुछ adverbs हैं जो हमने beginning में राइट करने हैं और sentence complete करना है। Look at the example on your book. The carpet unloaded planks of wood from the cart. The carpenter unloaded planks of wood from the cart. फ्रेज को किस तरह से यूज करते हैं? स्टार्टिंग में हम फ्रेज यूज करेंगे फ्रॉम द हैट, हियर इज द कॉमा, देन बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो हम राइट करेंगे। Look here, next sentence.
आई एम ऑलरेडी अंडरलाइन द वर्ड टुगेदर। आप इसी तरह अंडरलाइन करेंगे एडवर्ब को, ये एडवर्ब है टुगेदर, हम इसे सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करेंगे और कॉमा, देन यू स्टार्ट दे वॉक होम आफ्टर स्कूल, फुल स्टॉप। In this sentence, I am underlining the phrase through our ears. इसी तरह आप लोग अंडरलाइन करेंगे और इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। आप स्टार्टिंग में राइट करेंगे थ्रू आवर ईयर्स वी हियर साउंड। When I had fixed my bed, it was time to go to bed. I am underlining this. This is a phrase. आप स्टार्टिंग में इसी तरह यूज करेंगे। It was, it का I capital, it was time to go to bed, then comma, then when I had fixed my bed, full stop. A little boy is standing. I am underlining the word silently. Here is the adverb near the railway station. आप इसी तरह अंडरलाइन करेंगे और फिर इसको एडवर्ब को यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट यू राइट साइलेंटली, एस कैपिटल होगा, देन यू मार्क कॉमा, देन यू राइट other part of the sentence. A little boy is standing near the railway station. Silently, a little boy is standing near the railway station. जिस तरह मैंने ये सेंटेंस की एग्जांपल दी है, बाकी सेंटेंस भी आप लोगों ने इसी तरह से राइट करके कंप्लीट करने हैं। एंड दिस पार्ट यू पीपल डन ऑन योर नोटबुक। Number 5. I can hear my mother's footsteps clearly. I am underlining this word. This word is a adverb. You use first clearly, then comma, then I can hear my mother's footsteps from far away. Sentence क्या हो गया? Clearly, I can hear my mother's footsteps from far away. What sound can you hear on the road? On the road is a phrase. I am already underlined. You write here O capital, on the road, comma, what sound can you hear, question mark. Last sentence है, there are huge rooms in a hostel called dormitory. Here is I am already underlined in a hostel. ये आप स्टार्ट में यूज करेंगे और ये आपने लिखना है आई कैपिटल इन अ हॉस्टल, कॉमा, देन यू राइट अदर सेंटेंस आफ्टर दैट यू मार्क फुल स्टॉप। ये आपने, मैं दोबारा बता रही हूँ, होमवर्क भी करना है एंड और इसको अच्छे तरीके से लर्न भी करना है। Okay, thank you so much. 6th class. Today we have done these activities from page number 19 to 20. Page number 19 to 28. आप पेज नंबर 19 से 28 तक जो भी पार्ट मैंने करवाए हैं वो अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच।